So hello dear students, welcome again in the lecture of Business Administration 12th Standard NCERT Board, chapter number 1, Nature and Significance of Management. Before starting this lecture, I will again give you some instruction that whenever you are sitting in the lecture, please keep textbook with you because I will explain you one by one word and one by one line. Okay, so you will able to understand the textual study also as well as extra knowledge. You will get the extra knowledge. Today our last question in lecture number 4, that is a functional areas of management. So functional areas of management, there are total 4 areas of management. Whole the business 4 management areas are included. First is a marketing management, second is a human resource management, third number financial management, and fourth number is a production management. So this question they in the exam they will ask you short note regarding any one. Mostly whole question they are not asking, but short note they are asking. Okay, so we are going to start the chapter, the lecture, that's a functional areas of management, which include first number marketing management. Okay, on the textbook page number 10. Okay, first of all we will start the meaning of marketing management. Okay, what is marketing management, beta? Marketing management means a process of sending the goods from supplier to customer. Okay, in such process consumer must be satisfied as well as supplier must be satisfied. Okay, so process of sending goods from supplier to customer is called as a marketing in a easy language. See on the page number 12, marketing management start. It is given that in the broad sense, marketing is the activity providing goods from producer to customer. As I said you, marketing management includes exchange of goods and money, because producer will give the goods and he will take the money. So exchange of goods and money, as well as market research, distributing methods, sales promotion, storage, insurance, means all activity which are included in business regarding the goods. Like we have to take the insurance, we have to after production we have to make a storage. Okay, so all activities, receiving goods, exchangement of goods and money, insurance, production activity, storage, everything is included in the marketing. In a short meaning I will say again, providing goods from producer to customer is called as a marketing management. In the next line it is given, marketing management is a process which decide the necessity of customers. Here the main thing, if you want to sell your goods, you have to think about the satisfaction of customer, taste of customer, fashion of market, everything you have to, as a supplier, as a businessman, you have to consider this. Okay, because if customer will be satisfied, if customer will get everything according to his choice, then naturally you will be in the profit. So marketing is a process which decides the necessity of customer. It converts into goods or service, and then these goods and service are finally made available to the consumer according to user. Okay, here after testing, after deciding the taste of the consumer, the producer will convert his material, raw material, according to choice of customer, and then it will be made available for the customer. Thus, it can satisfy the need of particular customer or group of such people. It gives importance to optimum use of resource and profitability of organization. Marketing management aims at creating demand of goods and services. Main function of marketing management is also to create a demand. Market में demand create करवानी है according to consumer choice, बराबर, उसकी choice, उसकी test समझ के demand create कराओ and you will sell that. This is the main function. If demand will be not there in the market, why you will produce the goods?
So to how to create demand, that is also decided in the marketing management. The main element of goods, service, physical distribution, policy, increase in sale, packaging, ये सब marketing management include होता है. Now which are the function of marketing management? Marketing management के क्या function है? 4P. In exam they are also asking, write a short note on 4P. P. What is this 4P? This 4P are the function of marketing management. 4P. P for price. Second P for product. Third P for physical distribution. And fourth P for promotion. 4P. ध्यान रखना, एग्जाम में सब पूछते हैं. शॉर्ट नोट 4P. Then you will think what is 4P? P for product, P for price, P for physical distribution, P for promotion. ये 4P जो है ये function of management है. And one mark question they are also asking, what do you mean by price? अब जब कोई स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाता तो ये सब बोलता है what do you mean by price? तो a rate with which to the customer goods are sold, it is called price. What is product? The goods which we are producing, it is called product. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट टाइप के डिसीजन इंक्लूड्स हैं. जैसे कि प्रोडक्ट में मार्केटिंग मैनेजमेंट के फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट में यह डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट जो है उसकी साइज क्या होगी, ओके, उसका कलर क्या होगा, उसकी पैकिंग कैसे होगी, ये सब डिसीजन ले जाते हैं. यहां पे प्रोडक्ट मतलब कोई गुड्स की बात नहीं कर रहा है. सो रीड प्रॉपरली बेटा. व्हाट इज प्रोडक्ट? द डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल और विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोड्यूस. इट्स अपीयरेंस, हाउ इट विल बी अपीयर इन द मार्केट, कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विस, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. इन सब बारे में प्रोडक्ट का ये मतलब है. प्रोडक्ट मतलब डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, हाउ व्हाट विल बी इट्स कलर, हाउ विल बी इट्स शेप, ओके, हाउ इट विल बी इंट्रोड्यूस, आफ्टर सेल तुम क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे, गारंटी क्या होगी, पैकिंग कैसे करोगे. तो प्रोडक्ट के बारे में सब डिसाइड करना, दैट इज प्रोडक्ट. नाउ प्राइस में डिसीजन रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ प्राइस, क्रेडिट पॉलिसी, ओके, देन सेल पॉलिसी. ये प्राइस मतलब ये है, बाकी प्राइस मतलब कोई रेट की बात नहीं कर रहा है. ओके, यू कैन सी इन द सेकंड नंबर लाइन लास्ट वर्ड, द प्राइस डिसीजन इंक्लूड्स सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, होलसेल और रिटेल सेल, एंड ऑल्सो कमीशन टू मीडिएटर्स आर कंसीडर. मतलब ये सब कंसीडर करना है प्राइस के अंदर, न कि आपको प्राइस की मीनिंग बतानी है. इन सब में एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिसीजन रिगार्डिंग. डिसीजन लेना है आपको उसके बारे में. प्रोडक्ट में डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, प्राइस में डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस, क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंट, कमीशंस, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिकेगा. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन, कैसे आप गुड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कैसे होगी आपकी, वो सब. सो हियर सी मतलब होलसेल टू रिटेलर करोगे या मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर करोगे, कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में डिसाइड करना है. सी डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस वे ऑफ सेलिंग, वेरियस वेज, डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस वे ऑफ सेलिंग. लाइक डायरेक्ट सेलिंग करोगे, डायरेक्ट सेलिंग मतलब डायरेक्टली गुड्स मैन्युफैक्चर करके कस्टमर के डोर टू डोर पहुंचाओगे. थ्रू होलसेलर्स के थ्रू करोगे, रिटेलर्स, एजेंट्स, एज वेल एज प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. इन सब के बारे में हमको सोचना है, कैसे आप गुड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक वो और ट्रांसपोर्टेशन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. एंड प्रमोशन मीन्स आप अपने गुड्स का प्रमोशन कैसे करोगे. इंडोर सेलिंग, इंडोर एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन रखोगे. आप गुड्स को प्रमोट कैसे करोगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे, कस्टमर की चॉइस कैसे बनवाओगे, जिसका बेस्ट वे एडवर्टाइजमेंट है, पर एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो डिसाइड करना है यहां पे. प्रमोशन aims at a remarkable increase in sale. It include matter like advertisement, publicity, selling through salesmen, ways and means to attract the customer and
traders. Though promotion mix is expensive, मेन एक्सपेंसिव आपका ये प्रमोशन ही होता है बेटा, इसका 4P का फ्लैश प्रमोशन, बिकॉज इसमें बहुत सारा खर्चा होता है और कॉस्टिंग बढ़ती है, बट इट लीड्स टू इंक्रीज द सेल, लेकिन उससे सेल तो बढ़ेगा ही, तो प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा, विच रिजल्ट इन टू हाई प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, अंडरस्टूड. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू, मतलब सप्लायर और प्रोड्यूसर टू कस्टमर, विच इंक्लूड्स 4P. इसके फंक्शन है 4P. ओके, नाउ व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाम से मालूम पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स मतलब मोस्टली योर वर्कर्स, योर एग्जीक्यूटिव्स, ओके, योर अथॉरिटी मेंबर्स, जो आपके बिजनेस में काम करते हैं, उनके बारे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. हेयर डिसीजन रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स, उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर, उनकी ट्रेनिंग, everything, solving the complex problem of the workers and as well as the authorities, departmental heads and etc. तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जब मैनेजमेंट होता है, मतलब पब्लिक अपने स्टाफ के बारे में, स्टाफिंग से जुड़ा हुआ है ये बेटा, स्टाफ के बारे में जब तुम कोई डिसीजन लेते हो, इट इज टेकन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, नाउ सी इन टेक्स्ट बुक मीनिंग. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्रोसेस which take into consideration matter like proficiency, knowledge, intelligence, likes and dislikes, personal development, necessity of employees. एम्प्लॉइज के बारे में कहा ना, सब एग्जीक्यूटिव आपके जितने भी एम्प्लॉइज आपके यूनिट के अंदर, तो उनकी प्रोफिशिएंसी, उनका नॉलेज क्या है, उनका नॉलेज कैसे इंक्रीज हो, उनकी इंटेलिजेंसी, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, उनके पर्सनल डेवलपमेंट, कैसे मतलब आप अपने एम्प्लॉइज को डेवलप करो, उसके बारे में. जब क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स को समझना बहुत जरूरी है, उसके लिए वर्कर्स का, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होना जरूरी है. तो ये उनकी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, उनकी इंटेलिजेंसी कैसे इंप्रूव हो, बराबर, उनकी प्रोफिशिएंसी में कैसे इंप्रूव हो, इन सब के बारे में जब सोचा जाता है, इट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सी द कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट नंबर, एज आई सेड, HRM includes selection, training, promotion, direction of employees. Second number, HRM enables to accomplishment of objective by way of integrating them with individual objective, business objective. सबसे बड़ी बात, integrating the individual objective with business objective. क्या है इसका मीनिंग? देखो, पहले डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. मतलब हर एम्प्लॉय का अपना अपना ऑब्जेक्ट होता है कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊं. समझने को, हर एम्प्लॉय क्या होता है, मैं ज्यादा अर्न करूं, आई विल अर्न मोर देन दिस. ओके, दिस इज देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, वो सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है. एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव एक ही है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उससे गोल फुलफिल कर रहे हैं. अब जब एम्प्लॉय सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा, हर एम्प्लॉय सिर्फ अपना अपना सोचेगा, तो नेचुरली देयर विल बी क्रिएट अ ऑब्स्टेकल इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव. फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो वो बिजनेस और दूसरी बात ये है कि बिजनेस ऑब्जेक्ट जब कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा, नेचुरली ऑटोमेटिकली क्या होगा, एम्प्लॉय से बेनिफिट होंगे ही होगा, क्योंकि उनको उनकी सैलरी, उनको उनका बोनस, प्राइस, सब कुछ मिलेगा. मतलब एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता, पर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने से हर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं. तो यही काम है एचआरएम का, इंटीग्रेटिंग मतलब कनेक्टिंग, जोड़ना, इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव. उनको समझाना है कि सब अपने अपने गोल के लिए नहीं, लेकिन बिजनेस गोल के लिए काम करो, ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगा ही. ये समझ अपने एम्प्लॉइज में डालने का काम जो है वो एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, करता है. थर्ड नंबर है, बेसिक फंक्शन ऑफ एचआरएम इज टू मैनेज द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज को मैनेज करना है, बिकॉज दे आर आवर वैल्यूएबल एसेट्स. इट प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग, थस डेवलप पर्सनल फॉर द जॉब. नेचुरली उनको ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग से क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा. एचआरएम इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज. इवेल्युएट मतलब चेक, उसको ध्यान रखता है, इवेल्युएट करता है कि हर एम्प्लॉय किस तरह काम कर रहा है. इट इज कॉल्ड इवेल्युएशन. एफिशिएंसी, एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट. देखो, अब
इन सब बातों से अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, आप उनको सेटिस्फाई करते हो, हर चीज के बारे में उनको ट्रेनिंग देते हो, उनकी पर्सनल स्किल डेवलप करते हो, इन बारे में आप सोचते हो एचआरएम के अंदर, तो लेबर टर्नओवर रेट कम होगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अब कई बच्चों को यह मालूम नहीं कि लेबर टर्नओवर रेट क्या बोलता है। लेबर टर्नओवर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ लेबर। सपोज तुम लेबर रिक्रूट करते हो, फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आप उनको सिखाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, मतलब आपका वेस्टेज। फिर नए आएंगे, फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा, तो आपका नुकसान होगा, लॉस होगा। तो ये लेबर टर्नओवर रेट जितना कम हो, दैट इज बेनिफिशियल टू आवर बिजनेस। तो एचआरएम हेल्प्स टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर रेट बाय क्रिएटिंग सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करता है, जिससे लेबर टर्नओवर रेट कम होता है। यह भी एक फायदा है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एज पार्ट ऑफ एचआरएम, कंड्यूसिव एटमोस्फेयर मींस पॉजिटिव एटमोस्फेयर। एक एम्प्लॉय सब सेटिस्फाई होंगे तो एटमोस्फेयर भी पॉजिटिव होगा, नेचुरली है। आप देखो, आप सब किसी प्राइवेट जगह जॉब करना और गूगल के अंदर जॉब करना, कितना फर्क है ना? फर्क। फेसबुक के अंदर जॉब करना कितना, क्योंकि वो लोग ध्यान रखते हैं किसका, एम्प्लॉय का, जिससे एम्प्लॉय हाई पेड होता है एज वेल एज सेटिस्फाइड होता है। तो ये एटमोस्फेयर क्रिएट करने का काम किसका है, एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। एज पार्ट ऑफ एचआरएम, कंडूसिव एटमोस्फेयर इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज विच अल्टीमेटली बूस्ट देयर एंथुसियाज्म एंड प्रोफिशिएंसी। उनका एंथुसियाज्म बढ़ाता है और प्रोफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, स्किल, प्रोडक्टिविटी सब इंक्रीज होता है जब पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है। तो सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम। कीवर्ड्स जो हो बेटा उसको अंडरलाइन करने के आपको हमेशा। अब इससे इंपॉर्टेंस क्या होगा आपका, अगर ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपका अगर एम्प्लॉय हैप्पी है तो उससे फायदा क्या होगा, नेचुरली है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, आपके गोल, बिजनेस के गोल अचीव होंगे। ओके, सी द पॉइंट, एफिशिएंसी इंक्रीज। सेकंड नंबर, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज, बिकॉज बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, बिजनेस प्रेस्टीज इज मेंटेन, आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होगी। हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स आर मेंटेन, गुड्स भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा, वेस्टेज कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉय इज डेवलप, हर एम्प्लॉय के मन में हमारे बिजनेस के लिए एक फीलिंग क्रिएट होगी। मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, जो मैंने समझाया, लेबर टर्नओवर रेट कम जाएगा और वो जितना कम जाएगा इट इज बेनिफिशियल टू अवर बिजनेस। जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज, ओके, एंड ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय गेट जॉब सेटिस्फैक्शन विच फाइनली टर्न्स इनटू एनवायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। पीस बना रहेगा, शांति, हार्मोनी सब बना रहेगा बिजनेस के अंदर, ये फायदा होगा। ओके, अंडरस्टूड बेटा? Now our third short note is financial management. Finance, which is known as a blood. Like in body, if blood is not proper, if blood is not there, if there is a deficiency of blood, body will not work properly. Same in management, in business, if finance is not available, if financial distribution is not proper, naturally business will disturbed, chaos will be created everywhere. So finance is related with blood of body. What is meaning? See, in meaning it is given, financial management deals with finance function. Simple meaning, a process of dealing with the finance function of business is called as a financial management. Financial function means function of acquisition, utilization and allocation of capital. Now 3 functions, like here there was a 4 function, 4P. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 फंक्शन है, इनको क्या सोचना है जिससे बिजनेस में फाइनेंस प्रॉपर रहे। हाउ टू एक्वायर फाइनेंस, फाइनेंस कैसे आएगा, हाउ टू यूटिलाइज फाइनेंस, कहां यूज करें जैसे वेस्टेज कम हो, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस, मतलब जो आपका प्रॉफिट आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें।
जो आपको मालूम है रिजॉर्स होते हैं, रिजॉर्स क्रिएट होते हैं, डिविडेंड होता है, बराबर, जो अपने शेयर होल्डर को देना होता है, प्रॉफिट मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है, जिससे आपका बिजनेस अच्छा चले। ओके, तो हाउ टू एक्वायर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ओके, एंड हाउ टू यूज, एक्वायर, यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंस इज, these three are the function of financial management. Now following are the functions included in the financial management. First number, it estimate the need of finance, मतलब सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एस्टिमेट करना है कि बिजनेस में कितने फाइनेंस की जरूरत है। सेकंड नंबर, मेक फाइनेंशियल प्लान्स। थर्ड नंबर, प्रिपेयर बजट, बिकॉज बजट बनाने से ही मालूम पड़ता है ना व्हाट इज बजट। बजट इज एस्टिमेटेड शीट, एस्टिमेटेड शीट ऑफ व्हाट, ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना पैसा आएगा और आप कितना कहां यूज करोगे, उसका एस्टिमेट इज कॉल्ड द बजट। तो बजट मेन बिजनेस का जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो कौन बनाता है, फाइनेंशियल मैनेजर बनाते हैं। एलोकेट द फंड, फंड का प्रॉपर एलोकेशन। डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर है पूरा एक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है कि आपकी बिजनेस की कैपिटल कैसे होगी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोरोइंग फंड, ऑनर फंड, ऑनर्स फंड एंड बोरोइंग फंड जो होते हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो आपके बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब आपके बिजनेस में ओनर कैपिटल होगी, कितनी बोरोड कैपिटल होगी, उस सब का ध्यान भी किसे रखना है, फाइनेंशियल मैनेजर को रखना है। एंड टू सिलेक्ट द सोर्सेस ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ कैपिटल। सोर्सेज ऑफ एक्विजिशन मतलब आप, सोर्सेज ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या, कैपिटल कहां से आएगा, फिर से वही बात है, ओनर कैपिटल। अगर ओनर कैपिटल में होगा तो क्या होगा, इक्विटी शेयर होगा कि प्रेफरेंस शेयर होगा। बोरोड कैपिटल तो क्या होगा, डिबेंचर होगा, लोन होगा, बॉन्ड होगा, क्या होगा, वो सब सोर्सेज इनको डिसाइड करने हैं। टू कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ एक्वायरिंग फाइनेंस, और फिर फाइनेंस कैसे हम एक्वायर करेंगे, कैसे हमको फाइनेंस मिलेगा, उसका प्रोसेस नक्की करना है। टू सी दैट एक्वायर्ड फंड्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज, और यह भी ध्यान रखना है कि जो फंड हमको मिला है उसका यूज प्रॉपर हो। टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, टू प्लान फॉर टैक्सेस एंड मेक द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स का भी प्रॉपर अरेंजमेंट करना है बेटा, बिकॉज फिक्स एसेट्स, वर्किंग एसेट्स, इनमें भी बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, बराबर। फिक्स एसेट्स बढ़ गई तो वर्किंग एसेट्स नहीं है आपके पास तो बिजनेस रन नहीं होगा। ओके, तो ये मेंटेन करें, तो ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको ध्यान रखनी है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट मींस एक्टिविटी ऑफ डूइंग प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। whole process to convert the raw material into finished goods is called as a production, and such activity who are doing it is called, they are called financial production manager. Process of converting naturally available raw material into consumable goods with the help of human efforts and machines, we can say both, is known as a production. उसे production कहते हैं। Converting raw material into finished goods with the help of human efforts, it is called the production, and production management produces goods and service which are capable to satisfy the consumer. Okay, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये काम है कि कस्टमर तक जो है कौन सा गुड्स हम प्रोड्यूस करें जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो। नाउ मीनिंग इज गिवन, सी प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज प्रोसेस विच इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल। किसके ऊपर कंट्रोल, प्रोडक्शन एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल, उसकी स्पीड अप के ऊपर कंट्रोल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम कौन सा डिसाइड करना है कि मेथड्स क्या, कैसे मेथड से आपका प्रोडक्शन हो, उसका प्रोग्राम, उसका मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी। Now which is the function of production management? First number, to decide the production plan, production का plan decide करना है। To undertake the researches and देखो न्यू रिसर्च, अगर तुम प्रोडक्शन कौन सी नई डिमांड है, कौन सा गुड्स मार्केट में चाहिए, कंज्यूमर की क्या डिमांड है, क्या फैशन है, बराबर, वो तुम नहीं जानोगे और अपने लिए भी न्यू रिसर्च नहीं कर, न्यू रिसर्च मतलब न्यू रिसर्च तो बिल्कुल जरूरी है,
किसके बारे में? न्यू वेराइटीज ऑफ गुड्स, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज ऑलवेज न्यू मेथड इज टाइम सेविंग कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ये रिसर्चेस होना बिल्कुल जरूरी है प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन के मेथड के बारे में, बराबर। तो वो भी इन्हें करना होता है। टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट डेवलप कैसे हो, प्रोडक्ट मिक्स मतलब वही 4P, बराबर, वो सब के बारे में ध्यान रखना है। टू सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कौन सी मशीन यूज करनी है जिससे हमारा कॉस्टिंग कम हो, बराबर, वो इनको ध्यान रखना है। टू टेक प्रोसेस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एज वेल एज लेआउट, लेआउट ऑफ मशीनरी, बराबर, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, बोले आपका गुड्स जो है वो किस लोकेशन में चलेगा, बराबर, कहां पे, कहां किस लोकेशन में आपका गुड्स फेवरेबल है, बराबर, उस सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना है। एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल, मटेरियल की जरूरत कितनी पड़ेगी, कितना हमको मटेरियल प्रेजेंट में रखना है, कितना हमको ऑर्डर देके रखना है। जैसे एक मटेरियल फिनिश हो तो फिर दूसरा मटेरियल अवेलेबल हो, अदरवाइज वर्क फिनिश बंद हो जाएगा। तो वो कितना मटेरियल हमको रिक्वायर्ड होगा हमारे प्रोडक्शन के बारे में, उसका भी एस्टिमेट प्रोडक्शन मैनेजर को करना है। प्रोडक्शन कंट्रोल, मैंने कहा प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत फास्ट होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो आपको मालूम है नेगेटिव इंपैक्ट होगा, बिकॉज डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, स्पीड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, बराबर, तो डिमांड बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, मार्केट में क्योस क्रिएट होगा, ओके, और आपके जो दूसरे बिजनेसमैन हैं जिसको आप गुड्स प्रोवाइड करते हो रिटेलर को, वो उसका गलत फायदा उठाएंगे, जिससे आपके बिजनेस की इमेज खराब होगी, बराबर। तो प्रॉपर स्पीड पे कंट्रोल रखना है, जैसे डिमांड हो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट में गुड्स पहुंचाना है, उसके बारे में ध्यान रखना है। इसलिए प्रोडक्शन कंट्रोल होना जरूरी है, उसकी स्पीड पे। हैव अ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी के ऊपर भी कंट्रोल करना है ना, क्वालिटी खराब होनी चाहिए, अगर खराब हो गई तो भी आपका गुड्स मार्केट में नहीं बिकेगा, इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। तो वो क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान रखना है। प्रोडक्शन मैनेजर का मेन काम क्वालिटी का ही है, क्वालिटी बिगड़नी नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना है। टू अंडरटेक एक्टिविटी टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट, खर्चा कम हो, वेस्टेज कम हो, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर कम होगा तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो इट विल बी हैव अ गुड प्रॉफिट टू योर बिजनेस। और मार्केट में नेचुरली वेस्टेज कम होगी तो फिर प्राइस भी क्या होंगे, हाई नहीं होंगे, इससे कस्टमर को भी चीप रेट पे गुड्स मिलेगा, अच्छे रेट पे गुड्स मिलेगा, और अपना भी प्रॉफिट होगा। तो एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल करना है, कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना है। एंड टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मेथड जो हैं वो बिल्कुल सिंपल हो, वर्कर्स भी इजीली वर्कआउट कर सकें, उन सब के बारे में ध्यान रखना है। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क शॉर्ट नोट कोई भी आ सकता है बेटा, सो डू प्रॉपर स्टडी। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस लेक्चर। टुडे वी हैव डन व्हाट, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। दैट इज फर्स्ट नंबर इज marketing management. Marketing management includes 4P. P for product, price, physical distribution and promotion. HRM, human resource management. Okay, to see regarding the staff, staffing के बारे में है, बराबर, आपको आपके वर्कर्स की प्रोफिशिएंसी, उसका डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग, उसका सेटिस्फेक्शन के बारे में ध्यान देना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स which do the function of finance. Which are the function of finance? Mainly 3 functions हैं, कौन से? Acquiring finance, utilizing finance and distribution of finance. कहां से पैसा लाओगे, कहां यूज करोगे और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स टू रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी, जिसमें क्वालिटी का खास ध्यान रखना है, स्पीड का ध्यान रखना है, बराबर, और हर चीज के बारे में प्रोडक्शन कस्टमर को सेटिस्फैक्टरी पहुंचे, रिसर्चेस करने हैं आपको, वो सब ध्यान रखना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।